ओके तो आज के आंसर्स आ गए हैं और ये थे हमारे क्वेश्चंस. टेक अ लुक एट इट एंड जस्ट अ क्विक रिमाइंडर व्हाइल यू आर लुकिंग एट इट. हमारा ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, like what is the question asking, the core of it, and then to write some good introductions. Introductions are very essential, that reflect your understanding of the demand, and then lay out a framework of your body or whole answer depending upon the keyword which is given. And you have to pay attention to the words which are given in the question, and these are the things you had to pay attention to. I have highlighted them here. So here you can say, like in the first question, it's a direct question and you had to pay attention to why. You had to basically give reasons along with a good introduction, obviously. Then you had to critically examine what various facets of economic policy of British India, from where, from mid 18th century till independence. So we'll get deeper into discussion while looking at the answer. Then in third question, in what ways, so we had to focus on ways or dimensions basically that naval mutiny proved to be the last nail in the coffin of British colonial aspirations. And in 2013 questions, you had to show on what aspect gender, age, gender, and religion of women who came when during freedom struggle, and the keyword is discussed. So you can also talk about limitations. So these things should, the way you, the moment you see the keyword, the framework should be clear in your head. Then the next question, it's a very good question for learning how to answer where you have very limited knowledge. And this question asks about several foreigners made India their homeland and participated in various movements. Not all foreigners who made their homeland and participated in various movements. Analyze their what role in what struggle for freedom. And lastly, in many ways, Lord Dalhousie was founder of modern India. You don't have to argue against it, you just have to elaborate here. So this keyword has connotation that you are ought to just express why he is regarded. You are not going to counter argue it or say no, he wasn't. So depending upon keyword, these like overall approach should be. And let's see what the introductions are. Okay, so here the first introduction is First Battle of Panipat, 56, established Mughal Empire, second consolidated Mughal Empire, and third battle led to establishment of British Empire in India. Is that what really happened here? So this is something you have to see for yourself. These battles have changed the course of Indian history, but overall approach is good. You know, this, except this factual info, the approach is quite good. It can be further improved a little bit, but yes, it's good. Then regions for battle, for choosing Panipat as battlefield. Choosing, maybe you can just talk regions, you can cut short. When you talked about that, just say regions and it would be an indicative answer. Then conclusion. So like I say, if you can have clarity of what the conclusion would be, write it down here. What is the second introduction? The third battle of Panipat was fought between the Ahmad Shah Abdali and Mughal ruler Muhammad Shah Rangila. No. This is not exactly. It's like somewhat correct, but this is not what you had to write exactly. Battles fought at Panipat. Okay. Now see what madam has done.
was basically consolidated this information, okay, and you are writing this as a whole, and you can further consolidate in the model I am going to provide. So listen closely what you could have written, which would give a somewhat complete feeling, because next on you just have to give regions. There is no other dimension to this, and region should be at least 5 region you are providing here. And again, both of you have to write about map. See, it's a strategic location. Without showing Delhi at center and Panipat here, you cannot like give a founding region. And this was the bonus thing. Anyone who shows this, that Delhi being the capital of India or the empires, and Panipat being strategically located where it is easy to mobilize your forces and all that, and playground and all that, the answer is given. But this is the thing that will give you 1 or 2 extra marks. So you have to be careful, always be in an opportunistic mode where I can get some extra mark, where I can get the bonus. So keep that mind working, and let's hear the introduction, a model introduction I have written. Battles of Panipat include: first battle of Panipat where Babur overthrew Lodi dynasty, second battle of Panipat where Akbar defeated Hemchandra and laid foundation of Mughal empire, third battle of Panipat fought between Ahmad Shah and Marathas, laying waste to dream of Maratha empire. So now you will find that this introduction somewhat has more resonating tone to what they are saying. Third battle for empire shaking battles. See, so I have just not tried to incorporate like this battle were there, but also the empire shaking aspect the question asks or has said. See, empire shaking. So this thing is missing in these introductions, and obviously it is not a regular standard introduction. It was quite a large, like it would take 5 to 6 lines, and that's okay. Every question is not going to be 2-3 line of introduction, so be aware of that. Then finally, region, again I would recommend that you just put regions. What was the connecting line that I used? These empire shaking battles were fought on Panipat because, simple reason. Or you can just write the regions and give regions, and again I map and conclusion. Let's see the next question. Next question is: examine critically various economic. Okay, now you are going good. You have highlighted the things which are required. Yes, this is how you are like uh, supposed to decode the question and focus where you need to actually pay attention. Let's see if you have done the same things. Yes, it's coming. It's quite good to see it's coming. Economic policy of British. So this will keep you on toe and focused and precise. These are the strategies which don't let you deviate. So very good, both of you. Okay, let's see the introduction. British rule made Indian economy a colonial economy, as the structure and operation of Indian economy were determined by interest of British interest. It's a normal, not a standard, but it's a normal introduction. It can do. Okay, impact of British policy in India. No. You have written here. You have to critically examine. You have highlighted it. You cannot like have this keyword critically examine and use this heading. Okay, these are not the same thing. Here it would have been examining the impact of various. Then you could have written this here. Many nationalist like. Okay, so you have written the conclusion. Okay, has criticized these policies in famous Den of Wealth and said that India was getting poor due to colonial exploitation. Okay, this can do. Like this is somewhat a good conclusion, I would say. Let's see what you have written. From the mid 18th century, known for the one of the conquest because battle of Plassey till independence, British took many economic policy which
has mostly effect on severe effect. See, what you are doing here, no? You are talking in terms of vague. Like, let's remove this term, severe. So what you are saying is, uh, from this time to this time, Battle of Plassey, Britishers took many policy, brought very policy which had impact. What kind of impact? Severe impact. But it gives me no idea what kind of severe. Severely, like bad. In what sense? So you have to use keyword. It is devoid of any critical information. It is just rhetoric. You understand that the critical information is missing here. Okay, let me complete this whole thing. Then you have various facets of economic, administrative, socio-cultural, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे फोकस करना है यहाँ पे, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन सोशल इन पे नहीं करना है. इकोनॉमिक पॉलिसीज में आपको जो बात करोगे इसमें जैसे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गई, तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, वन साइडेड जो आपका था ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो ये होंगी चीज़ें. मार्केट के लिए था, ये आप एस्पेक्ट्स पे बात करोगे, इस पे नहीं. एग्जाम्पल्स, क्रिटिकल एग्जामिन मेकिंग इंडियन इकोनॉमी बाय यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज, डिमांड फुलफिलिंग कॉलोनियल रूरल मार्केट. हाँ, ये चीज़ें ठीक हैं, बट ये जो आप इतने बड़े बड़े लिख रहे हो ना, इन्हीं को शॉर्ट में करना पड़ेगा. आप जो ये दे रहे हो, या तो देखो अभी फ्रेमवर्क इसका क्या होता कि आप एक इंट्रोडक्शन देते, जैसे कि मैंने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लिख सकते थे कि मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1750s या मिड 18th सेंचुरी टिल इंडिपेंडेंस इंक्लूड. तो आप क्या करते कि मैंने बहुत ही एक लाइन का इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद मैंने कुछ मेजर पॉलिसीज बता दी सीधे सीधे बहुत शॉर्ट में. ठीक है, देन क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमारा, क्रिटिकली एग्जामिन. तो हम हेडिंग डाल देंगे भाई क्रिटिकल एग्जामिनेशन. उसके बाद जो ये हमने पॉलिसीज बताई हैं 1 2 3, लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंडस्ट्री पॉलिसी. ठीक है, तो इस पे हम फिर बात कहेंगे क्रिटिकल एग्जामिनेशन की. ये बोलता तो था कि हम भले के लिए कर रहे हैं, बट इट वाज इन्वर्टेड एंड इट लेड टू इंडिया बिकमिंग सोर्स ऑफ ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज एंड मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स. तो दैट वुड बी योर क्रिटिकल एग्जामिनेशन. आप ऐसे इंडस्ट्री पे बात करते तो ये मॉडर्न इंडस्ट्री तो बसा रहे थे, बट दिस वाज डन टू व्हाट, टू सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट, टू गेट द गुड्स आउट ऑफ रूरल एरियाज एंड टू एक्सपोर्ट इट टू फॉरेन मार्केट. तो ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी. तो ये एस्पेक्ट जो है, जब हम बॉडी पूरा जब आंसर डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से जाएंगे. बट दिस वाज द अप्रोच यू कुड हैव टेकन. अल्टरनेटिवली इसमें एक और था कि आप यहीं पे आप बात करते कि इंट्रोड्यूस वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसमें आप पॉलिसी डालते, यहीं पे क्रिटिकल अप्रेजल दे देते और उसको हाईलाइट करते, अंडरलाइन करके आप हाईलाइट जो करते हैं वो करते. तो अंडरलाइन करते आ जाते आप, जो भी जो क्रिटिकल आपका ओवरव्यू था सिर्फ उसको हाईलाइट या अंडरलाइन करते. तो ये दूसरा आपका यहाँ पे एक और अप्रोच हो सकता था, बट आई वुड से कि ये बहुत क्लैरिटी लेके आता है. सो आई प्रेफर दिस वन कि आपने एक तरफ पॉलिसीज फटाफट लिख दी, उसके बाद क्रिटिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनर विल ऑटोमेटिकली सी दीज थिंग्स. उससे कुछ नहीं करना है, बस देखना है हाँ 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 नंबर अवार्ड. सो दिस इज द अप्रोच यू आर ऑट टू टेक and this will get you better marks than any person else. Like if you were to write this kind of answer, like समझ में आ रहा है ना कि आप कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हो और इतना सारा लिख रहे हो, अपने वर्ड वेस्ट कर रहे हो. What did I do? I did not provide anything in the introduction. I just talked about in 2 lines. खत्म. So let's get to the next question. In what ways? Okay, yes, you had to focus on ways. Did naval mutiny prove to be the okay? हाँ, सॉरी, आई एम टेकिंग दिस एक्स्ट्रा टाइम. यहाँ पे आपको कंक्लूजन बहुत क्लियर होना चाहिए. यहाँ पे कंक्लूजन बहुत ही लाइक इन मैडम ने जो लिखा है दैट इज अ गुड वन. अदर आप जो कंक्लूजन है ये आपको लिखना चाहिए था यहाँ पे. एंड कंक्लूजन शुड बी लाइक these policies were introduced to protect British interests and not to serve India's, and hence that led to ruin of Indian economy. आप ओवरऑल जो कंक्लूजन है यही है. इसी को आप 2-3 तरीके से कह सकते हो, लाइक यू कैन यूज कोटेशन फ्रॉम दादा भाई नौरोजी और एनी अदर वे, बट दिस कंक्लूजन इज मस्ट.
that these policies were introduced to serve British interest and led to ruin of Indian economy. आप इस चीज को escape नहीं कर सकते हो, यहाँ पे conclusion must है. Okay, now that being said, let's get to question number 3. In what ways naval mutiny proved to be the last nail in the coffin of British colonial aspiration in India? ठीक है भाई, तो इंट्रोडक्शन क्या लिखा है? 3 major upsurges, one during, इतना काफी था, इतना. November 49, February has observed many due to poor job. ये नहीं, ये आपको नहीं बताना है, क्या जरूरत है इसको, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है. हमें बस ये बताना कि हाँ ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वर नेवल म्यूटनीज. अंडरलाइन कंडीशन आप नहीं जानते तो वहां पे बताया ना कि आप इस वजह से हुआ पुअर जॉब कंडीशन, ये डिससेटिस्फैक्शन था. अगर आपका डिससेटिस्फैक्शन नहीं है तो पुअर जॉब कंडीशन होते हुए भी यू वुडंट हैव रिबेल्ड. सो दिस इज नॉट लाइक यू हैव डेविएटेड हियर. I'll talk about the introduction when I have discussed the second one. These mutiny proved to be the last nail in the coffin of because. ठीक है, आप इतना बात किए फिर कंक्लूजन दे देंगे. और हमारा कीवर्ड नहीं है यहाँ पे. अगर डिस्कस होता तो आप डेफिनेटली कुछ और कहीं जा सकते थे, बट सीधे वेज है तो आप वेज पे बात करोगे. आपने भी फोकस किया है, वेज पे हमें फोकस करना है. म्यूटनी सिर्फ जस्ट वन पार्ट है, इसमें और कुछ नहीं है. ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशन. ओके, the Royal Indian Navy rating during Indian national movement was called the coffin in the rule. It may marks the end of. See, आपने भी पूरी इस चीज को वापस से बोला और इतना सारा वर्ड लिया, तो डोंट डू दिस अनलेस अंटिल लाइक अगर आप फिर से वही रेटोरिक दे रहे हो ना, जो क्वेश्चन ने दिया है उसी को घुमा के दूसरे वर्ड में कर रहे हो, तो मेक इट एज शॉर्ट एज यू कैन. Sometimes you won't find like a good introduction. So never do this like write 4-5 lines which are saying nothing but the what is stated in the question in other words. So don't do that. तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे? ओके, सिंपल यही चीज मैंने भी लिखा है क्योंकि आपको सीधे सीधे रीजन्स पे फोकस करना है. तो रिन म्यूटिनी और नेवल म्यूटिनी 1946 is said to be the last nail in the coffin of British Empire because सीधे सीधे आप रीजन्स पे आ जाओगे. रीजन्स में इसका कोर ऑफ द कोर यही था. लाइक कंक्लूजन यहाँ पे आपका मस्ट होना चाहिए, या तो आप कंक्लूजन में बात करो या इंट्रोडक्शन में बात करोगे. तो यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने बात किया है कि मिलिट्री नेवी वर द लास्ट बेसियन विच शुक last whole idea is that after Quit India movement, the civil foundation, the political foundation, everything was gone out of hand of Britishers. Everyone was against them. The only control for them was through military, through navy, and now it was also shaking. Where would you fall back to if there was to be a rebellion in India? Who would you imply? Now you cannot even trust your last resort, measure of last resort. It's gone. So yes, it was last nail. Now you can see it is the last nail in the coffin of British colonial aspiration because you have nothing that you can rely upon now. So that is why it is called last nail in the coffin of British Empire. So have that thought clarity, and that should be here either in introduction or you can bring out that in the conclusion. Okay, so always like when you are getting a question on major event like civil disobedience, CDM, QIM, non-cooperation, NCM, Bengal partition and Swadeshi, so you should have that thought clarity, or major British policies, economic policy, administrative policy, judicial policy. So in these area you should have a broad understanding, and a clear cut conclusion should be already available to you. बना के रखो भाई, रट के रखो जो भी है, बट इस पे आप बहुत शॉर्ट क्रिस्प कंक्लूजन आपका तैयार होना चाहिए क्योंकि दीज थिंग्स आर आस्क्ड वेरी ऑफन.
ओके, दैट बीइंग सेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। डिफाइन द बैरियर्स, कौन से बैरियर? हाँ, आपने अच्छी चीज किया है, जेंडर एंड रिलीजन को हमें दिखाना पड़ेगा। द इंडियन वुमेन बिकेम द टॉर्च बेयरर ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये नहीं है कुछ, इसका मतलब नहीं है। बेसिकली इन्होंने पास करके दे टुक व्हाट समवॉट लीडरशिप रोल और एक्टिव रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल। ये है हमें डिस्कस करना है, डिस्कस अगेन, इस पे आपको फोकस करना है। तो आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन दोगे कि हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हो, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। देन यू विल गिव एग्जाम्पल, you will have to highlight age, you will have to highlight gender तो ऑलरेडी है ही, रिलीजन, ठीक है। तो इस पे फोकस करते हुए आप कमेंट मारोगे एग्जाम्पल देते हुए। यू कैन टेक सुनीति एंड शांति एंड Binita, all these girls who took participate, they were not even of age 18, they were minors. So you can talk about them, you can talk about Sarla Devi Chaudharani, Rukaiya Begum Hekawat and all that. So ये example and name dropping इस आंसर में मस्त थी। Then ये हमने क्वेश्चन से एग्री करते हुए दिखा दिया कि they were torch bearers and all that. Obviously सरोजनी नायडू एंड मेजर लीडर का तो नाम आएगा, वो हर कोई जानता है, बट ये चीज़ें आपको हाईलाइट करनी थी, रिलीजियस एंड एज वाला फैक्टर। तो आप ये डायमेंशन बात करोगे, दिन आप बात कर सकते थे पॉलिटिकल, और खैर वो आंसर डिस्कस करने वाली बात होगी तो वो बाद में करेंगे। हाँ, फ्रेमवर्क के हिसाब से कि यू एग्री विद दैट एंड देन फाइनली यू कैन टॉक अबाउट लिमिटेशंस। अगर आप ये सोच पा रहे हो तो अच्छी बात है। एंड देन कंक्लूजन, कंक्लूजन यहाँ पे भी मस्ट है, यहाँ पे इफ बट का कोई सिचुएशन ही नहीं। यहाँ पे आपका कंक्लूजन यही है कि दस वुमेन अनडिनाइबली प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल। आपने क्या लिखा है? फॉर कंट्रीज काउंटलेस, फॉर काउंटलेस ऑफ ईयर। ओके, थोड़ा सा ग्रामर इशू है। ईयर वुमेन वर suppressed and subordinated because of age, gender and religious factors, but it was seen that during Indian national movement their active participation। okay, आप इसको सही कर सकते थे। I get the intent of the question, like you are trying to say कि सालों से औरतों को इन फैक्टर पे, एज, जेंडर, रिलीजन पे दबा के, अब देखो ये चीज है ना कि सबऑर्डिनेट ऐसे शब्द नहीं यूज करना है, ठीक है। आप इसको लिख सकते थे कि देयर रोल वर कन्फाइंड, देयर रोल इन्वॉल्व डोमेस्टिक डीलिंग। सो क्योंकि दिस इज वेरी रॉन्ग रीडिंग, like unless until question is saying something like that, don't portray everything in negative light, so have neutral terms, their active participation। तो आपने फिर बात की, हाँ ठीक है, अच्छा इंट्रोडक्शन है, बट आप इसके लैंग्वेज को यू विल हैव टू रिफाइन इट, इसको और अच्छे से रिफाइन करके कि इसको पढ़ने पे आई डोंट हैव टू स्ट्रगल, मीनिंग क्लियर हो जाए। ओके, टॉर्च बेयरर, ओके, हाँ आपको यहाँ पे अगर याद है तो आप बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ आपको इस पे फैक्टर करना था। जेंडर, जेंडर यार ऑलरेडी दिया हुआ है। रिलीजन पे तो आपने कहाँ पे बात किया है? पॉसिबल बिकॉज ऑफ सोशल मूवमेंट, ये वाला नहीं चाहिए आपको, डायमेंशंस पे नहीं, लाइक टॉर्च बेरर पे हल्का सा आप उनके रोल पे बात करते हैं, ये चीज चलेगा, ये बढ़िया है। आप लाइक अप्रोच ले सकते हो कि हाउ दे वर टॉर्च बेरर, दे वर टॉर्च बेरर इन सोशल रिफॉर्म, दे वर टॉर्च बेरर इन, but rather than doing that just take simplistic approach, because that's not the intent of question कि आप हर जगह पे उनका एक्टिव एंड लीडरशिप रोल दिखाओ, rather than कि they did take part in national like whole thing। The question is talking about struggle for freedom, उन्होंने बहुत एक्टिव रोल लिया और जगह जगह पे काम किया। ये आप कर सकते थे कि ड्यूरिंग दिस, या ड्यूरिंग सिविल मूवमेंट, ड्यूरिंग इन रेवोल्यूशनरी, इन पॉलिटिकल, इन सोशल, तो ये डायमेंशन स्टैंडर्ड है
है ना, आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हो तो यू गो थ्रू दिस, राइट? तो यूज दीज डायमेंशन विच आर स्टैंडर्ड, don't try to make your own thing because it would be difficult and further more difficult to understand with certain present example. अब अगर आपको बहुत अच्छे से मालूम था एग्जाम्पल तब तो आप दे सकते थे, बट अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो डोंट फोर्स योरसेल्फ, सिंपली आप दे के आगे बढ़ जाओ. इट इज़ नॉट समवेयर लाइक यू कैन थिंक ऑफ अ गुड एग्जाम्पल राइट देन एंड देयर. अगर होता तो आप लिख देते यहीं पे. ओके, इन्होंने क्या लिखा है भाई? इंडियन वुमेन हैज फॉट विथ अनडाउंटेड करेज. ओके भाई, एग्रीड. एंड ट्रू स्पिरिट टू अर्न द फ्रीडम फॉर द कंट्री. ठीक है, अच्छी बात है, सही बात है भाई. रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल. अब ये जो हेडिंग सर ने डाली थी ना, आप यहीं पे ये उठा सकते थे कि टॉर्च बेरिंग, या रोल भी चल जाएगा वैसे तो. कंक्लूजन नहीं, यहाँ पे आप छोड़ नहीं सकते, वहाँ पे आपको बात करनी पड़ेगी. सो दिस इज व्हाट आई रोट. Traditionally, women's role in India was confined to household and related work, but during freedom struggle, they broke the barrier of age, gender, religion, and often fought shoulder to shoulder with their male counterparts. And then I had began with the points giving social, yeah, and then finally, since the keyword is discuss, so both of you have missed talking about limitations. तो आपने ये बातें तो बहुत अच्छी यहाँ पे लिखी हैं, अनडाउंटेड ये, बट लिमिटेशंस पे आप यहाँ पे नहीं एस्केप कर सकते हो, है ना. लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेड टू एलीट क्लास. ठीक है. देन आपका दूसरा क्या लिमिटेशन थी? लिमिटेड टू सिटीज, अर्बन सिटीज एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस. आपके गांव में कहाँ बहुत कम थे, बहुत कम ऐसे इंसिडेंट हुए. तो देयर क्लास and number and regions where they participated was limited. ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा. दिखाते तो अच्छी बातें, नहीं दिखाते तो भी कोई वो नहीं है, बट सिंस इट इज डिस्कस तो आप ये दिखा सकते हो बिल्कुल. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेवरल फॉरेनर्स मेड इंडिया देयर. ओके, हम देख चुके हैं, इसमें हमें एनालाइज करना है. ओके, नाउ आई सेड ना कि इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. और अगर भाई आपको एक ऑक्टेट, बेसेंट एंड हेनरी, ऑक्टेट एंड ब्लवात्स्की, इनके अलावा और किसी का अगर नाम याद है ना तो आप बहुत महान है भाई. ठीक है, क्योंकि लाइक आई बीन स्टडिंग दिस थिंग एंड आई नो कि देयर आर फ्यू नेम्स, बट आई डोंट हैव देम राइट नाउ. अगर आएंगे तो आई कैन रिकॉग्नाइज देम, बट टू रिकॉल इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. तो अगर आपको इनसे ज्यादा नाम मालूम है, 5-6 और मालूम है, तो आप महान है, आप एक्सपर्ट है. बट generally it won't be the case. I'm telling you 90% of the people will have this thing only, और उसी पे खेलेंगे. एंड व्हेन पीपल आर इन डाउट, नॉट श्योर, तो हमेशा आप जानते हो ना, प्रीलिम में आप कर चुके हो चीजें. whenever you have failed, whenever you are in anxiety and you know that you don't know, chances that you will mess up is very high. और इसका यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी उठानी है. लाइक हैव दिस कॉन्फिडेंस. और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? ऐसे आंसर लिखने से और इनसाइट लेने से. दिस इज समथिंग आई स्पेशली फोकस ऑन, कि भैया ऐसा क्वेश्चन आए ना तो डोंट थिंक कि मुझे नहीं आता है. बी अवेयर कि 90 से 95% को नहीं आता है, एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू राइट अ गुड आंसर. हाउ यू कैन डू दैट, अभी देखते हैं. सो इन्होंने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन से पता चल जाएगा. India since ancient time exhibit its
assimilation and accommodative cultural features due to which many foreigners came and settled. Even during the British era, foreigner contributed. पता चल रहा है ना, क्वेश्चन बात कर रहा है आपका फ्रीडम स्ट्रगल की, आप अलग ही पूरा कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो. यू आर नॉट टू द पॉइंट, एनीवन कैन सी दैट, इवन यू कैन सी दैट, राइट. एग्जाम्पल में क्या लिखा है भाई? हाँ, हेनरी विवियन डेरोजियो जोन्स, एनी बेसेंट. बिल्कुल, डेरोजियो को तो मैं भूल गया था. आई विल से दैट विलियम जोन्स. यस, दैट्स गुड वन. इधर देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है. सो सी, यू हैव दीज थिंग्स, यू नो दीज नेम्स, एंड इनमें से आपको, जैसे मुझे ये याद रहा, ये बहुत अच्छे से जानता था, बट इस टाइम पे दिमाग में नहीं आया. आई ऑल्सो नो विलियम जोन्स, इनका रोल जो है ये भी बहुत अच्छे से, बट उस टाइम पे नहीं आता, बिकॉज यू आर आउट ऑफ योर माइंड. ये क्या पूछ दिया. इन्होंने क्या लिखा है भाई? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज यूनिक ड्यू टू गांधीयन अप्रोच बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन. दिस हैज अट्रैक्टेड मेनी फॉरेन नेशनल टू पार्टिसिपेट. नहीं भाई, अब हेनरी विवियन डेरोजियो के टाइम पे तो गांधी थे ही नहीं, हो तो अभी भगवान के पास थे, पैदा भी नहीं हुए थे. सो हाउ कैन ही वुड हैव लाइक इन्फ्लुएंस देम, राइट. तो आपने क्या किया, आपने गांधी ले लिया, आपने खुद ही अपना बेस जो है 1869 से इंडिपेंडेंस तक कर दिया. इससे पहले भी लोग रहे हैं फॉरेनर जिन्होंने लाइक नेशनल INM हम बोलते हैं ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो जनरली हम लेते हैं कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद से, लाइक रफली स्पीकिंग. तो ये कब है हमारा? 1885, राइट. यहाँ से लेके इंडिपेंडेंस तक की हम लेते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब. ओके. और जब हम बोलते हैं स्ट्रगल, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये कई बार कुछ लोग पूरा लाइक 1857 से भी लेने लग जाते हैं, और कुछ लोग यहाँ से भी लेते हैं. तो ये टर्म कोई बहुत स्ट्रिक्टली डिफाइन नहीं है. तो हैव दैट क्लैरिटी कि जब ये बात हो रही तो कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है. तो मैंने क्या बोला था ना कि 90% पीपल विल मेस दिस थिंग अप. इन्होंने भी यही किया है. रोल ऑफ फॉरेन नेशनल इन फ्रीडम स्ट्रगल, आपने हेडिंग अच्छी डाली, बहुत अच्छी बात है. यही चीज आपको करना था यहाँ पे, रादर देन नेशनल्स पे आपको रोल पे फोकस करना था कि इन्होंने कैसा कैसा काम किया. ठीक है. और इस वाले को मैं अभी डिस्कस थोड़ा सा कर ही देता हूँ. ओके, कि क्या कर सकते थे. अब देखो ये इंट्रोडक्शन. Many foreigners from Britain, Ireland, USA, Russia, etc. participated and settled and participated in national movement, contributing to India's freedom struggle. ठीक है. सीधा यहां से इसके बाद मैं बात कर दूंगा जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है. क्या पूछा है? एनालाइज देयर, पूरा क्वेश्चन स्किप कर दिया सर ने. एनालाइज देयर रोल, है ना. तो यहाँ पे रोल पे आपको लिखना था बहुत अच्छे से. यहाँ पे आपको नहीं याद था ना, तो भी ये क्वेश्चन का कोर डिमांड ये नहीं है, कोर डिमांड ये है एनालाइज देयर रोल. तो अगर आपको नहीं याद, आप क्या करते क्या हो ना, कि इस पे यही जज करते हो कि अरे मुझे तो फॉरेन नेशनल ही नहीं मालूम है, बट आपको रोल सबको मालूम है. रोल क्या क्या था? एक तो तुम्हारा इंस्पायर करना, अगेन आपको मिल जाएगा एनी बेसेंट वाला एग्जाम्पल की है, आयरलैंड के होम रूल से इंस्पायर्ड थी. तुम्हारा रोल था सोशल चेंज वाला, अगेन आपका ऑक्टेड एंड रिलीजियस मूवमेंट जो था, थियोसॉफिकल सोसाइटी. देन और क्या रोल है तुम्हारा? एजुकेशन एंड एनलाइटमेंट, आपका हेनरी विवियन डेरोजियो की बात कर सकते हो आप. इसमें अगेन क्या है? हाईलाइटिंग इंडियाज स्ट्रगल एट इंटरनेशनल. तो यहाँ पे हेनरी एंड जितने कई सारे पत्रकार थे उनका रोल आप बात कर सकते हो. देन लिमिटिंग, एक अच्छा पॉइंट था कि लिमिटेशन ऑफ ब्रिटिश क्रूएलिटी. तो कई बार ब्रिटिशर्स जो है लाठीचार्ज इस तरह की चीजें नहीं करते थे, बिकॉज देयर वर फॉरेन प्रेस कवरेज. सो ये प्रेस लिमिटेशन, पुटिंग डिमांड ऑन हायर एशेलॉन्स, तो इन सब चीजों में बहुत इनका अच्छा रोल था. बिल्डिंग द ब्रिज बिटवीन इंडियाज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एरिना. तो ये चीजें आपका रोल पे
होगा, एंड ऑब्वियसली जो बेसिक रोल है तो वही रहेगा, एजुकेशन, एनलाइटमेंट, तो ये कहीं बदलेगा नहीं। एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन वाले में आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जो रेवोल्यूशनरी थे, कम्युनिस्ट मूवमेंट थे, उसमें एक बंदा आपका चार्ज हुआ था, आई थिंक लाहौर कॉन्स्पिरेसी नहीं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी नहीं, आई थिंक देयर इज ए कॉन्स्पिरेसी। तो आप वो चीज यहाँ पे लिख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वे में, कि स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी एंड ऑल दैट। और अब दिख रहा है कितना सारा कंटेंट है लिखने को, and thus you can finally conclude that thus many like foreigners acted as a linkage and messenger, जो भी आप करना चाहो, तो you have all the information, it just you don't know that you had that. Okay, next हमारा question है, in many ways Lord Dalhousie was the founder of modern India, again elaborate। इस पे एक ही चीज है, क्वेश्चन ये सिंपल है, वन पार्ट क्वेश्चन है, इसका डिमांड भी बहुत क्लियर है, इलेबोरेट करना है हमें और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, क्लियर कट एग्जाम्पल्स देना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन देना है, एंड डायमेंशन थोड़ा सा आपका दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, इन्होंने लिखा, लॉर्ड डलहौजी बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1840s, आई थिंक 1848 से 56 तक की है। तो ये अगर आपको याद है जिसको भी, तो इट्स बेटर, सॉरी। सो 1850s died and dies many, क्या लिखा है, many crucial, it's hard to read, okay, I'm trying to, but 40s and many lies laid, okay, maybe it sounds like laid, something like that, crucial development by infrastructure and legislation approach which help in integration of India political। अगर आप सब कुछ यहीं बता दोगे तो फिर बॉडी में क्या बताओगे सर। सो ऐसी चीजें जब आए ना कभी भी वन पार्ट, तो इंट्रोडक्शन एक बहुत बड़ा लेआउट रखे कि हाँ ये बंदा आया था, इसने बड़े बड़े काम किए थे, तब आप थोड़ा सा वेग टर्म उठा सकते हो, क्योंकि अगर सब यही बता दोगे तो बॉडी में कैसे स्पेसिफिक चीजें बताओगे। आपने कई चीजें यहाँ स्पेसिफिक बता दी, आपका हेडिंग होता बॉडी का कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इसने काम कराया, लेजिस्लेशन में काम कराया, जो भी आप जो बोल रहे हो ना, तो आप इनका ब्रॉडर कीवर्ड यूज करो, ठीक है ना। अभी I'll discuss that how you can do that। वर्क ऑफ डलहौजी, आपने बात किया इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे, आपको ये याद था लेजिस्लेशन डॉक्ट्रिन तो ये कोई वो नहीं, आपको बस जो चीज़ें याद हैं वो आपने लिख दिया है, बट देयर आर अदर थिंग्स। ओके, इन्होंने क्या लिखा है भाई, डलहौजी वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 48 to 56। ओके, तो लिपा पोते मत करिए अगर आपको नहीं याद है, तो इट्स रादर टू यूज जो सर ने यूज किया है 1840s to 50s, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, इट्स नो वेयर रॉन्ग। हिज टेरिटोरियल एक्विजिशन ट्रांसफॉर्म मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो आप ये मॉडर्न इंडिया, जो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया है ना, ब्रिटिश इंडिया, दे आर नॉट द सेम। लाइक मॉडर्न इंडिया जब भी हम बोलते हैं तो उसका लाइक बहुत डिफरेंट मतलब होता है, बहुत सारे लोग दे डोंट इवन नो व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न इंडिया। आई आस्क लाइक मेनी वुड टॉपर एंड ऑल दैट कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न इंडिया इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया, क्या मतलब है। एंशिएंट तो तब भी बता दो कि हाँ ये टाइम बेस्ड है, मेडिवल जो बीच में आया, व्हाट डज दिस मीन मॉडर्न इंडिया। पूछ के देख लेना भाई आसपास, जितने आपके बहुत अच्छे बनते हो तो आप पूछ के रखना और नीचे आप कमेंट करना, है ना, कि क्या मतलब है मॉडर्न इंडिया का। इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट एंड श्योर देन डू दैट, ठीक है भाई। पॉलिसीज, अब हाँ ये आप यहाँ से देखो, ये बहुत अच्छा काम किया, यहाँ से आप इन्फर कर सकते थे कि कैसे लेड डाउन फाउंडेशन, ये चीज अगर आपको याद है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, रेलवे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीग्राम,
टेलीग्राम था, टेलीग्राफ है। पोस्टल रिफॉर्म, बिल्कुल। सोशल उतना तो नहीं है, सोशल एजुकेशनल आप बोल सकते थे थोड़ा बहुत, बट दीज आर हैंस डलहौजी कैन बी सेड टू। देखो इसका कैसे लिखा है मैंने। लॉर्ड डलहौजी was Governor General of India during 1848 to 56. India in 1848 to 56. During his tenure, he laid down foundation of many modern ideas, institution and infrastructure such as, अब ये जो आपने लिखा है वो हम डाल देंगे कि कैसे इसने मॉडर्न आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को रखा। यही तो फाउंडेशनल स्टोन है जिस पे मॉडर्न इंडिया बनता है हमारा। तो कैसे कैसे आपको हमने बात कर दी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, तुम्हारा रेलवे और तार इंट्रोड्यूस किया, पोस्टल जो सिस्टम पूरा जो था ये लेके आया। देन आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन बेस्ड जो अप्रोच है ना, ये इस बंदे का ही है कि आपका ये पूरा जो है लेके रिफॉर्म ही नहीं, मतलब कई चीजें, नई चीजें इसने इंट्रोड्यूस की, सिस्टम जो कि अभी भी यूज हैं, अभी भी हम यूज करते हैं ना। दिस थिंग इज स्टिल इन यूज। ये जो टेलीकम्युनिकेशन है स्टिल इज इन, रेलवे इज स्टिल इन यूज, अप टू मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिल यूज। तो इसलिए लाइक ब्रॉडली आप जो कहा जाए तो ये मेजर डायमेंशन थे। अगर आप इनको अच्छे से डील कर देते, बात कर देते हो, दैट्स इट। फिर फाइनल आप इसीलिए कंक्लूड भी कर दोगे कि 10 मिनी रिगार्ड, बेसिकली हमें इलेबोरेट करना है ना, द कीवर्ड इज इलेबोरेट। तो आप यही बात कहोगे कि दीज ideas, institution, and infrastructure are in use till date, and hence he is regarded as the founder of modern India. ओके तो ये इसलिए नहीं, ये आपको कनेक्ट करना पड़ेगा प्रेजेंट डे से। यहाँ पे आपके पास है भैया अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है टू कनेक्ट दिस थिंग। यहाँ पे कंक्लूजन आप बहुत अच्छा देखे। क्या होता है ना कि अगर बंदे पढ़ लिया एग्जामिनर ने, तो अगर 4 देने वाला होता है ना, तो अच्छा कंक्लूजन विल पुश हिम टू गिव यू 5। ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज। लाइक कंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी चेक किया, इसीलिए बता रहा हूँ कि इट गिव्स लाइक लास्ट में आपका ह्यूमन फैक्टर जो है ना वो बहुत बढ़ा देता है, और दैट्स हाउ यू गेट बेटर मार्क्स। तो आज का ये खत्म हो गया। अभी हमारा एम जो है वो है कि जीएस पेपर 1 में हम और इंट्रोडक्शन ओवरऑल कंफर्टेबल हो जाए। कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आई होंगी इस पूरे सेशन में। तो अभी बचता है, एंड आई विल गिव यू अनदर सेट ऑफ question that would again be from GS only, and then we'll move someplace else, then we'll come back again, and overall after like this introduction, conclusion and framework, बचता क्या है, सिर्फ आपको बॉडी के लिए keywords and dimension को याद करना है, रटना है। ये जो है this is like major part। इसके अलावा आपका क्या बचेगा, टाइम मैनेजमेंट एंड हाइलाइट्स, मैप्स। तो वो जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करोगे विद ड्यू टाइम, इट विल कम। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग। बाय बाय।